Hello children, I hope you are all doing very well. In previous video we saw about the page layout options of margins, how to custom your margin, then the page orientation and how to change the paper size. You can set as default size of any paper you want to use it regularly. Now today we are going to go a step further in making the Word document even more effective. Today we are going to see about columns. Columns means जो lines होते हैं vertical lines में लिखा जाता है, that is columns. Okay, so if you want to do give this two paragraphs in columns, in two different columns, or say only this big paragraph in a column, all you have to do is select this page layout. There are different tabs available: home tab, insert tab, page layout tab. In page layout tab you can select columns and select how many our columns we want. First we will see with two columns. Okay, this is usually used in magazines or newspapers. This type of columns are used. You can see now this paragraph how it will change to two columns. Yes, this is how the column works. You can even make this to three columns. All you have to do is go to page layout and columns option जो है पेज सेटअप ग्रुप में वो सेलेक्ट करना है और गिव 3 columns. नाउ इन कॉलम्स के बीच में हम चाहे तो लाइन भी ड्रॉ करा सकते हैं. यू कैन इवन मेक लाइन्स ड्रॉ इन दिस कॉलम्स. फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, और ऐसे नहीं कि सिर्फ 3 columns करने हैं. वी कैन इवन मेक मैनी मोर कॉलम्स बाय क्लिकिंग ऑन मोर कॉलम्स. सी, I'll select and I'll give 4-5 columns. It will come as 5 columns. And each column के बीच में अगर मुझे line draw करानी है तो I will just select this option, line between. I will just select this option, that is line in between. See, I have selected here number of columns as 5 and I have selected this checkbox, that is लाइन बिटवीन. अगर मैं ये सेलेक्ट करती हूँ तो बीच में लाइन आएगा और नहीं सेलेक्ट करती तो बीच में लाइंस नहीं आएंगे. सो आई एम गोइंग टू गिव योर लाइन इन बिटवीन. आई एम गोइंग टू क्लिक ओके. जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगी यहाँ पर जो 3 columns है ये 5 में हो जाएगा. ओके, 1 2 3 4 एंड 5. ये सारा का सारा जो है 5 columns में हो गया. Right? Now, if I don't want, I can again do undo. So this is the way to create columns and add lines to the columns. Now I will show you about the columns with left side. Means little information will be on the left and more will be on the right hand side. Just see this, I am selecting, so the information is lesser on the left hand side and more on the right hand side. Again I will give this as right. See, information is less on the right side and more on the left hand side. Information is more on the right hand side, left hand side, and right hand side it is lesser because I have selected the column option right. So these are the ways we can do the columns. Now children, there could be a possibility that मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि अपने आप ही वो हाफ एंड हाफ में डिसाइड कर लेगा कि कॉलम एंड कहाँ से होगा और स्टार्ट कहाँ से होगा, है ना. सो व्हाट कैन आई डू इज आई कैन सिलेक्ट द पैराग्राफ. ठीक है, यहाँ तक. इफ़ आई वांट कि इसके बाद का जो है वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, नेक्स्ट कॉलम में आना चाहिए, तो आई विल गो टू दिस पेज लेआउट, पेज सेटअप ग्रुप एंड क्लिक द ब्रेक एरोस. ब्रेक मतलब कहाँ से कट होना चाहिए. सी, यहाँ पर कॉलम कट है
तो यहाँ पर जैसे मैं दूंगी तो कर्सर कहाँ रखा था, यहाँ पर रखा था, तो इसके बाद का जो भी होगा इट विल कम इन अ न्यू कॉलम एज अ कॉन्सिक्वेंस में सी it will come in a new column. Okay, I have not already selected the column option. See now I will make it as column here, 2 columns or 3 columns, and if I want this from here, this productivity, say if I want a next column, I will give breaks in the page setup group and I will select the column. So this will go to the next column. Alright, we can decide from where we want it to go to the next column. See from here if I am going to give, जहाँ पर मुझे वो नेक्स्ट लाइन में लेकर जाना है, नेक्स्ट कॉलम में लेकर जाना है, आई विल क्लिक एंड कर्सर वही रहेगा, कर्सर विल रिमेन देयर ओनली. कर्सर इज हियर नाउ स्टूडेंट्स के पास. मैं यहाँ पर कॉलम्स में जाके, सॉरी ब्रेक्स में जाके आई विल क्लिक एंड आई विल गिव कॉलम्स, तो नेक्स्ट कॉलम में जाएगा. स्टूडेंट्स के बाद जो भी टाइप किया हुआ है वो नेक्स्ट कॉलम में जाएगा. सी इट इज़ गॉन टू द नेक्स्ट कॉलम नाउ. स्टूडेंट्स के बाद जो भी टाइप किया था इट इज़ गॉन टू नेक्स्ट कॉलम. Similarly, we can use this page break option for the paragraphs also. For example, मुझे इस वर्ड के बाद, मॉनिटर के बाद नेक्स्ट पेज में जाना है, तो अगेन सेम थिंग, यू कैन सी इट क्लियरली नाउ. या सो अगेन सेम थिंग, इन द पेज लेआउट ऑप्शन I will go to breaks option and select page break. मीन्स जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ से नेक्स्ट पेज में ये चला जाएगा. लाइक यहाँ पर मॉनिटर पर कर्सर है तो मॉनिटर नेक्स्ट पेज में आएगा. जस्ट सी दिस नाउ, द मॉनिटर हैज गॉन टू नेक्स्ट पेज. ऑलराइट, now if I am going to give from here over emphasis, यहाँ नीचे और भी स्पेस है, लेकिन जैसे ही मैं पेज ब्रेक का ऑप्शन दूंगी वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा. जस्ट सी दिस, पेज ब्रेक मीन्स इट इज गॉन टू द नेक्स्ट पेज. सी, ऑलराइट, सो दिस इज द वे वी यूज ब्रेक फॉर कॉलम्स एंड पेज. कॉलम मीन्स जहाँ पर भी कर्सर होगा वहाँ पर जाके हम ये ऑप्शन जब सेलेक्ट करते हैं तो वो नेक्स्ट कॉलम में चला जाए. पेज मीन्स वो नेक्स्ट पेज में चला जाए. नाउ चिल्ड्रेन, इफ़ यू वांट टू हैव अ न्यू पेज, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक पेज, इसके लिए बीच में भी कहीं पर भी अगर आपको इंसर्ट करना है, लाइक दिस पेज एंड दिस पेज के बीच में अगर मुझे न्यू पेज इंसर्ट करना है, आई विल जस्ट क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट ग्रुप. इंसर्ट ग्रुप में क्लिक करके टैब में, इंसर्ट टैब में क्लिक करके आई विल सेलेक्ट ब्लैंक पेज. सो इसके बाद न्यू पेज आएगा और न्यू पेज विल ओपन. नाउ जस्ट सी ब्लैंक पेज, सी अ न्यू पेज हैज़ कम बिटवीन दोज टू पेजेस. बीच में कहीं पर भी अगर हमें ब्लैंक पेज करना है तो क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड ब्लैंक पेज. दैट्स ऑल. नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड एज हाइपर लिंक्स. हाइपर लिंक मतलब हमारे कंप्यूटर में ही या इंटरनेट की वेबसाइट में हम जाके दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं. मीन्स इफ़ आई वांट सम डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मैंने टाइप किया और इसका मुझे और डिटेल में दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके मिलने वाला है, तो उसका लिंक मैं यहीं पर दे सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू डू दैट, सी आई विल जस्ट शो यू. इंसर्ट टैब में ही जाएंगे हम, वहाँ पर लिंक्स ग्रुप, सी दिस इज़ द लिंक्स ग्रुप एंड आई विल सेलेक्ट दिस हाइपर लिंक जो टॉप में है, दैट इज़ हाइपर लिंक. ये सेलेक्ट करते ही अभी मैं अपने कंप्यूटर में से ही कोई पेज निकाल के डालने वाली हूँ. सो यहाँ पर आई विल जस्ट सेलेक्ट आंसर्स, यस,
answer paper and I will select answer paper, or wait, I can select another document. कहाँ से मैं ढूंढ के डाल सकती हूँ, मेरे कंप्यूटर में मेरे अपने काम कहाँ रखे हैं वो मैं डाल सकती हूँ. ओके, सी this answer key I am taking and putting here. Now when I click on this, what will happen, ये जो पेपर है वही वो जो डॉक्यूमेंट है वही खुलेगा. सी, और ओपन करने के लिए what you have to do is first press the control key and you have to click. See, here also it is showing. You have to first press the control button key on the keyboard and click on this link. Immediately वो ये जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन करेगा. सो इसके लिए ये इजी हो गया ना. अगर किसी डॉक्यूमेंट में मुझे ऐसे लिखा जाता है कि गो एंड चेक द आंसर इन क्लास 4 रिवीजन टेस्ट, तो मुझे वो ढूंढने के बजाय आई कैन क्लिक जस्ट कंट्रोल एंड प्रेस क्लिक एंड इट विल ओपन. इट्स टेकिंग टाइम टू ओपन बट इट ओपन्स अप. नेक्स्ट इज हेडर एंड फूटर. Header and footer, as the name suggests, see it's open finally. डॉक्यूमेंट ओपन हो गया. वो जो लिंक मैंने दी थी उसका आंसर की था वो ओपन हो गया. नाउ व्हेन आई क्लिक क्लोज इट इज़ क्लोज. नेक्स्ट हेडर फूटर, एज द नेम सजेस्ट, मतलब पेज का हेडिंग जो होता है वो, एंड फूटर मीन्स द बॉटम ऑफ द पेज. हेडर फूटर का क्या काम होता है, I'll just delete this page that is there. हेडर फूटर मीन्स यहाँ पर हेडिंग सारे पेजेस में एक जैसा रहेगा. फूटर मीन्स जहाँ पर हम पेज नंबर डाल सकते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन हम डाल सकते हैं. ओके, सो हेडर फूटर कहाँ पर है, अगेन जो भी हमें डालना होगा, एक्स्ट्रा चीज़ डालनी होगी उसे इंसर्ट कहते हैं. ओके, we will use insert option. insert में जाके we will select this header and footer option. header क्लिक करेंगे तो header यहाँ पर दिखना शुरू हो जाता है. किसी भी पेज पे जाके हम header को ऐड कर सकते हैं. and you have different types of headers also. okay, बहुत सारे टाइप्स हैं header ऐड करने के, उसमें से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं. Any type of header you can just select. Class 5 chapter 4. okay, MS Word layout and views. Now when I give enter and click anywhere on the Word document, it is there and it will be there for all the pages. see, सारे पेजेस में ये हेडर सेम ही होगा. okay, in this type of header you have this page number also. next is adding page number to the Word document. how do we add page number? footer में भी children you can add notes here. I will just show you footer option. पेज layout, insert footer. footer में भी हम कोई भी मैसेज यहाँ पर टाइप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल sample, I will just type here. okay, sample. and click anywhere on the document, it will all be there in the bottom, sample करके. पेज नंबर ऐड करने के लिए भी वी विल यूज़ दिस सेम इंसर्ट ऑप्शन, पेज नंबर, और यहाँ पर भी कहाँ पर हमें ऐड करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं. पेज के ऊपर टॉप ऑफ द पेज, या पेज के नीचे, या पेज के मार्जिन में. एंड वाइल वी आर सेलेक्टिंग वी कैन ऑल्सो सी कि कहाँ पर आएगा ये, या फिर अभी जहाँ पर है वहीं पर चाहिए. नाउ आई विल गिव एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड आई विल सेलेक्ट व्हाट पैटर्न. आई विल सेलेक्ट दिस वन, plain number 1. now you see page number 1, page number 2 and page number 3.
एंड ये हेडर फुटर देखना बंद करने के लिए जस्ट क्लिक double click anywhere on the screen, then the header footer won't be visible. So this is how you insert the page number. Thank you children. There would be a part 3 also for this chapter. I will upload it very soon. Thank you. Have a nice day.